Hello students. So today I am going to discuss with you the arithmetic operations and arithmetic operations. All the arithmetic operation we will discuss here today. And let's see. I am here going to write arithmetic operations. So what are the arithmetic operations? So arithmetic operations are one of the arithmetic operation is your addition and subtraction. So we have already discussed about the integers. So what are integers? We have discussed about the unsigned integers and signed integers. Okay, so we have already discussed about these two things. So addition, subtraction, and another thing is your multiplication. And multiplication of two operands and division. So we will check two things here. यहाँ पर हम दो चीज़ देखेंगे बच्चों. One of the thing is that what is the hardware needed, because it is a organization, it is a computer organization, and we are going to organize the things. Okay, so we must have the knowledge of the hardware as well as of the coding and instructions. So what we are going to discuss about the addition and subtraction, multiplication and division, and for that what we need hardware, the information of the hardware, and the algorithm by which the task happens. So two things we need here. One is hardware and another is algorithm. Okay, so let's see. So we are going to discuss about the addition and subtraction algorithm today. So we are going to discuss addition and subtraction. So for this what we have to do, we have to constitute a table. Okay, so what kind of the table? What we have two operands. One is A and another is B, right? So A और B क्या है? ये वो डेटा है जो मुझे चाहिए. इसी डेटा पे मुझे दो ऑपरेशन करवाने पड़ सकते हैं. या तो मुझे एडिशन करवाना पड़ सकता है या मुझे सब्ट्रैक्शन करवाना पड़ सकता है. इन दोनों में से मुझे कुछ भी करवाना पड़ सकता है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक दीज टू थिंग्स only. Now we have already discussed about the 2's complement. Okay, so हम क्या करेंगे, हम जो मेथड यूज़ करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, वो सब्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली तो हम 2's complement लेंगे, राइट? तो अगर मैं कहता हूँ कि a माइनस b हमें करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू a में ही डेटा स्टोर हो जाएगा, a में ही आंसर स्टोर होगा, और वो क्या स्टोर होगा, a प्लस b बार plus 1. So what we need to do, we need a complementer and a parallel adder, right? So that's we need all. Okay, now another thing, we need a table. So what kind of table it must have? So let's see. So I'm deleting all the things. So now see, for the addition and subtraction we need a table, and it is like that. It is like that. It is so we have two operands. One is a. So मेरे को क्या करना है, मेरे को साइन बहुत ध्यान में रखना है कि दोनों के साइन क्या हैं, राइट? सो प्लस a प्लस b. This is the thing, right? Now what I need to do, I need to do the addition, magnitude addition, and इसके बाद मुझे क्या करना होगा, magnitude subtraction. Okay, so magnitude subtraction में मेरे पास में केसेस बनेंगे. एक केस क्या बनेगा कि अगर मुझे a माइनस बी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को a इज़ ग्रेटर देन b है ये चेक करना पड़ेगा, a लेस देन b है ये चेक करना पड़ेगा, या a इज इक्वल टू b है. तो मुझे इसमें से कुछ भी चेक करना पड़ सकता है.
ठीक है. नाउ सी, नाउ इफ ए प्लस ए एंड प्लस बी, मतलब दोनों टर्म्स के जो दोनों इंटीजर्स हैं उनके जो साइंस हैं वो पॉजिटिव हैं, तो मुझे क्या करना है? अगर दोनों के साइन पॉजिटिव हैं तो दोनों को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं. इट इज़ ए प्लस बी, और इसका जो साइन आएगा, इनको ऐड करने के बाद जो साइन आएगा वो भी प्लस में आएगा. ठीक है. अब क्या है कि अगर मेरा एक प्लस ए है, मैं यहाँ पर भी एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ. ओके. मेरा एक मैग्नीट्यूड प्लस ए है और प्लस एक मैग्नीट्यूड मेरा एक मैग्नीट्यूड मेरा माइनस बी है. इट इज माइनस बी. ओके. सो वन इज प्लस ए, अनदर इज माइनस बी. तो क्या होगा? इट शुड बी ए माइनस बी. It should be a minus b, but not here. And now it is a case of a minus b, तो मुझे subtraction करना पड़ेगा. अब अगर a is greater than b है तो, और a का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो मेरा हो जाएगा a माइनस b. अगर a छोटा है तो मेरा क्या हो जाएगा? माइनस b माइनस a. ओके. अब a इज इक्वल टू b है तो क्या हो जाएगा? a, अब साइन तो रहेगा तो जीरो. अगर a इक्वल टू बी हो जाएगा और मुझे माइनस करना पड़ रहा है तो वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए. तो मैं आई विल ऑलवेज राइट हेयर प्लस एंड आई विल राइट हेयर माइनस बी. सो a माइनस बी मस्ट हैपन एंड द साइन मस्ट बी पॉजिटिव. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो साइन इज इंपॉर्टेंट हेयर. नाउ नेक्स्ट केस बिकम्स व्हेन योर a इज माइनस नेगेटिव एंड b is positive. So now again subtraction will happen there. In this case, your this a, if a is greater than b, okay, then this will happen. Minus a is common and I am taking a minus b. Now if a is less than b, then it is positive and it is b minus a. Now if a is equal to b, then again same will happen, and because it will become 0, so if the 0 must be positive, so positive 0 must be like that. Now next case becomes when both are negative, minus a plus minus b. Now what happened? Now addition तो होगा, लेकिन जो उसका आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा. ओके. सो हेयर इज योर नेगेटिव आंसर. सो दैट्स हाउ पॉजिटिव केस मीन्स. इन दिस केस व्हाट वी आर डूइंग एडिशन, राइट? एडिशन ऑन ऑपरेंड्स, बट एडिशन ऑन ऑपरेंड्स, वी आर डूइंग एडिशन ऑन ऑपरेंड्स. ओके. अब एडिशन तो कर दिया हमने ऑपरेंड्स पे, लेकिन जो केसेस बने वो ये वाले बने. अब क्या है कि मुझे सब्ट्रैक्शन करना है. तो सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे पास में केसेस क्या बनेंगे? अब नाउ आई हैव टू डू प्लस ए माइनस प्लस बी. अब इस केस में क्या होगा बच्चों? सब्ट्रैक्शन होगा. सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन इट्स ओके, ए माइनस बी एंड प्लस साइन मस्ट बी देयर. अगर आपका बी बड़ा होगा तो माइनस बी माइनस ए. अगर आपका दोनों बराबर होंगे तो a माइनस बी. नाउ नेक्स्ट a प्लस ए माइनस माइनस बी. ओके. सो नाउ अब क्या होगा? अगर ऐसा केस है तो यहाँ पर एडिशन होना चाहिए. इसमें प्लस नहीं होगा, इस केस में आपका एडिशन होगा एंड इट मस्ट बी लाइक दैट एंड the sign will be positive. Okay. Next is when a is negative minus but b is positive. In this case also the negative sign must be there and addition will be happen. Now if minus a is there, minus b is there, now subtraction will happen, and if a is greater than b, then minus a minus b. If a is less than b, then plus
b minus a. If a is equal to b, then again a minus b. So this is the table. This is very important table. Here I have a table, and this is by means of this table we are going to discuss my another thing, and this another thing is my hardware. I have told you already कि मेरे को क्या करना है, मेरे को हार्डवेयर बनाना है. तो हार्डवेयर बनाने के लिए किसी इस एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए मेरे को दो चीज़ों की ज़रूरत है बेसिकली. वन इज़ योर हार्डवेयर एंड अनदर इज़ योर एल्गोरिथम. ओके, एल्गोरिथम जो इस हार्डवेयर को चलाएगा. ठीक है, एल्गोरिथम जो इस हार्डवेयर को ऑपरेट करेगा. तो हार्डवेयर में मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? अब देखिए, अब मेरे को चाहिए साइन बिट नंबर है, सो बी एस मस्ट बी देयर. और बी एस के साथ क्या होना चाहिए? इसका बी का रजिस्टर. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास में कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास +4 है, तो इट इज़ 0100. मेरी ये जो MSB है ये मेरी BS में रहेगी, राइट. और जो बाकी का मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड मेरा यहाँ पर रहेगा. ठीक है, अगर ये -4 होता तो ये होता आपका 1. मैं इसको 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, 1011 एंड 1 ऐड कर देंगे इसमें. सो 110 एंड 110 एंड 1 एंड 1. सो दिस इज माई 2's कॉम्प्लीमेंट. एंड जो ये वाली बिट है ये अगेन यहाँ पर आपकी स्टोर रहेगी, और ये जो लास्ट की जो 3 बिट्स हैं ये मैग्नीट्यूड है, ये आपके यहाँ पर स्टोर रहेंगे. तो इससे हमें इसकी साइन बिट का पता चलता रहेगा. दूसरा रजिस्टर है मेरा ए रजिस्टर. ओके, सो नेक्स्ट रजिस्टर मेरा है ए. सो ए रजिस्टर मस्ट बी देयर. ओके, सो AS shows the sign bit. Okay, and A magnitude of A is here. So likewise this, the same example, the same things are going to happen. Now one thing I need, a complementer. कंट्रोल्ड कॉम्प्लीमेंटर. मैं इसको कहूँगा कि कंट्रोल्ड कॉम्प्लीमेंटर होना चाहिए. और वो कंट्रोल्ड किससे होगा? वो होगा कंट्रोल M से. ठीक है, अगर M = 0 होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा. अगर M = 1 होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा. इससे क्या होगा कि मेरे को करना क्या है? मेरे को तो सिर्फ एडिशन ही करना है. ठीक है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो, चाहे वो एडिशन की फॉर्म में हो. अगर वो एडिशन की फॉर्म में है तो मेरे को क्या करना होगा? मुझे A में डेटा स्टोर करना है A + B. अगर वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो मुझे A + B बार + 1 करना है. लेकिन करना दोनों में एडिशन ही है. तो एडिशन ही करना है तो मुझे एक और भी लेना पड़ेगा ब्लॉक, एंड इट इज़ योर पैरेलल, you can say parallel adder. Only full adders are used in this case. Okay, so only full adders. So मेरे को एक कैरी भी चाहिए इसमें. तो मैंने एक कैरी के लिए यहाँ पर मैंने एक इनपुट दे दिया कि अगर M = 0 है तो कॉम्प्लीमेंट होगा, और कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा और B एज इट इज़ ऐड हो जाएगा. ठीक है, अगर B हमारा एज इट इज़ ऐड हो जाएगा तो मैं यहाँ पर एक एरो भी बना देता हूँ. ठीक है, और ऐड किस में होगा? पैरेलल एडर में जाके हो जाएगा. ए भी मेरा ए में ऐड होगा. तो पैरेलल एडर 2 ऑपरेंड्स लेगा, एक तो B और एक A. B को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है. तो जब M = 1 होगा तो M = 1 होने पे कॉम्प्लीमेंट करेगा, B को कॉम्प्लीमेंट करेगा और इसमें एक ऐड कर देगा. कॉम्प्लीमेंट करने के बाद B में एक ऐड कर +1 कर देगा. +1 क्या करेगा? ये वाला जो 1 है इसको +1 करेगा. मतलब ये कैरी जो यहाँ पर आ रहा है इसको भी 1 कर देगा. अब पैरेलल एडर के बाद यहाँ पर मुझे मिलेगा E मेरा कैरी है. इट इज़ माई कैरी, आउटपुट कैरी. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कैरी है. अब एक और होता है AVF. AVF क्या है? ऐड ओवरफ्लो फ्लैग या फ्लिप फ्लॉप और फ्लिप फ्लॉप. ओके, तो इसमें क्या रहता है? इसमें अगर कोई भी मेरा ओवरफ्लो आता है तो वो ऐड करने के बाद अगर मेरा कोई ओवरफ्लो आता है तो वो इसमें जाकर ऐड हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि आई हैव one is my bit is 5 and another is 7. So 5 for 5 it is 0
1 0 1, and for 7 it is 0 1 1 1. So if I add these two things, अब दोनों ही नंबर पॉजिटिव है मेरे, राइट. अब क्या हुआ, 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3 1. अब लास्ट वाली बिट क्या आ गई, 1 आ गई. अब ये जो 1 है ये गड़बड़ है. अब यहाँ पर ये, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो मेरा लेकिन ये है क्या, यहाँ पे आ क्या रहा है, ये मेरा ये एक नेगेटिव नंबर शो कर रहा है, तो ये ओवरफ्लो हो गया, ये एक ओवरफ्लो कंडीशन हो गई. तो जब भी दोनों के साइन सेम होते हैं तो ओवरफ्लो कंडीशन जनरेट होती है, ठीक है. अब इसको भी आप देखेंगे बाद में कि ये किस तरह से हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं. तो कैरी जो होता है वो ओवरफ्लो में जाकर हम सेव कर देते हैं, ओवरफ्लो में जाके हम सेव कर देते हैं एडिशन के केस में, राइट. और सब्ट्रैक्शन के केस में हम AVF को 0 कर देते हैं. ओके, सो इसलिए क्योंकि ये एडिशन के केस में ही यूज़ होता है, एडिशन के केस में ही होता है. अगर पॉजिटिव है ये तब भी हो रहा है, अगर नेगेटिव करोगे तब भी ये यहाँ पर क्या होगा, तब नेगेटिव हो जाएगा. देखिए, अगर 2 नेगेटिव नंबर्स आप लेंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर आप 2 नेगेटिव नंबर्स लेंगे तब भी आपका यहाँ पर ये ओवरफ्लो जो है ये 1 नहीं हो, तब आपका ये 1 नहीं होगा, तब ये 0 होगा और एक कैरी जनरेट होगा. जब कैरी जनरेट हुआ और ये 0 हुआ तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है. जब ये MSB इसकी पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तब भी ओवरफ्लो जनरेट हो जाएगा. ओवरफ्लो का मतलब ही एरर टाइप ऑफ थिंग है कि अगर ये एरर आती है तो आप चीज़ों को किस तरह से हैंडल करेंगे. ओके, तो ये आपका कंप्लीट हार्डवेयर है, ठीक है. सो M की बात क्या है, M को देख लेते हैं. अगर M इक्वल टू 0 है तो नो कॉम्प्लीमेंट, तो नो कॉम्प्लीमेंट एंड जो कैरी इन है C इन इक्वल टू 0. और अगर M इक्वल टू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट B एंड C इन इक्वल टू 1, राइट. अगर मैं M इक्वल टू 1 करता हूँ तो ये वाला ऑपरेशन सक्सेसफुली होता है, और अगर मैं नहीं करता हूँ तो ये वाला ऑपरेशन सक्सेसफुली होता है. ओके, नाउ एल्गोरिथम. मैंने बोला कि 2 चीज़ें यूज़ होती हैं यहाँ पर, एक हार्डवेयर और एक एल्गोरिथम. अब एल्गोरिथम देखते हैं कैसे यूज़ होगी. अब एल्गोरिथम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिथम हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे वो देखते हैं. ओके, hold on please. So students, let's discuss about this algorithm. So here this is the algorithm. In this what we are going to do, one is your subtract operation and another is your add operation. There are 2 things. So मैंने क्या किया, मैंने डेटा इनपुट करवाया. मैं कहता हूँ कि मैंने A और B इनपुट करवाया, ठीक है. तो और A और B इनपुट करवाने के बाद मैंने मेरे पास 2 बटन्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि मेरे को ऐड करना है. एडिशन के लिए मेरे पास एक बटन है और एक बटन मेरे पास सब्ट्रैक्शन के लिए. सब्ट्रैक्शन तो A और B डेटा डालने के बाद मैंने ये दोनों बटन में से कोई एक चूज़ किया. अब वो ऑपरेशंस हैं, 2 ऑपरेशन है, वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है और एडिशन ऑपरेशन है. तो अगर मैं एडिशन ऑपरेशन यूज़ करता हूँ तब क्या होता है, जब मैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यूज़ करता हूँ तब काम कैसे होगा, और काम किस पे होगा, काम होगा आपकी जो हमने अभी डिस्कस किया उस पे, जो आपका हार्डवेयर है उस पे काम होगा. सो देयर आर 2 images you can see on my screen and it is in your notes and I will send you. So मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास में 2 ऑपरेशंस हैं, उनको करने के लिए एक हार्डवेयर यूज़ करना पड़ेगा. वो हार्डवेयर ये है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. नाउ होगा कैसे वो हम देखते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा. सो वन इज़ योर सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन एंड अनदर इज ऐड ऑपरेशन. सो हम कोई भी नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक +6 और +7, मैंने ले लिया 6 और 7 ले लिया. ओके, 6 का जो बाइनरी है वो क्या होगा, 0 1 1 0, और 7 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 1 1. ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे 1 1 1 0 1 1 0 and it is at 1 here, it is also 1. So 7 and
6 is 14, 13, so it is your 13, and the number that we have got here is also 13. So 1, 2, 4 and 8, 8, 4, 12 and 1, 13, so it is also 13. Okay, so हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया कि ए में ये है और बी में ये है. नाउ लेट्स सी अब क्या होगा, एएस और बीएस दोनों कंपेयर किए जाएंगे. ठीक है, अब मैंने क्या करना था, मैंने एडिशन करना था, मैंने दोनों को ऐड करना था. तो ऐड करने के लिए मैंने प्लस का बटन दबाया और उसके बाद देखिए क्या हुआ. सो व्हेन आई पुश द एडिशन बटन देन AS and BS will be comparable. So my MSBs are these two things. Both are comparable and हम compare कैसे करते हैं दो bits को XOR gate से. तो XOR gates किस तरह से काम करेगा, if both are 0 then output is 0, 0, 1 or 1, 0 then output is 1, 1, and if both the bits are 1 then it is also 0. Okay, so if both the bits are 0 तो क्या होगा, तो इसका मतलब दोनों बिट्स आपकी इक्वल हैं और मेरे को किसी भी तरह का ऑपरेशन किसी भी तरह का कोई साइन कोई इंटीजर नहीं चाहिए, कोई पॉजिटिव दोनों में ही एडिशन होना चाहिए. अगर दोनों बिट्स आपके इक्वल हैं, अभी आपने टेबल देखी थी उसमें अगर जब दोनों MSBs आपकी एडिशन जब उनका साइन जो थे वो दोनों सेम थे तो हमने सिंपल एडिशन परफॉर्म किया था. तो हम फिर वही एडिशन परफॉर्म करेंगे हेयर. तो अगर दोनों बिट्स इक्वल हैं देन इट डायरेक्टली गोज टू द EA इज इक्वल टू A प्लस B एंड इट विल प्रोवाइड मी द आउटपुट इन टू थिंग्स. वन इज E एंड अनदर इज A. A इज योर एक्यूमुलेटर और A रजिस्टर. सो A और B दोनों ऐड होके सेव कहाँ पे हो रहा है, E और A पे ही सेव हो रहा है. राइट, अब जो AVF है, ऐड ओवरफ्लो फ्लैग है, उसमें हमने क्या किया, जो भी E की वैल्यू आई, ठीक है, E की वैल्यू जो भी आएगी वो हमने AVF में अपडेट कर दी और अपडेट करने के बाद ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया. और एंड में हमने क्या बताया कि रिजल्ट इज इन A एंड AS. राइट, अब दूसरा केस देखिए. दूसरा केस बनता है कि जब हमारे पास में ये वाला नहीं है. अब देखिए आप एक बार ज़रा उस टेबल को देखिए कि उस टेबल में क्या था. उस टेबल में ये है वो टेबल, so some delay is there in opening the table. Okay, so अब इस टेबल में आप देखें, अगर दोनों एडिशन है, अगर दोनों में एडिशन हो रहा है, दोनों के साइन सेम है, तो सिंपल हम एडिशन कर रहे हैं. आप देखिए दोनों को हम ऐड कर रहे हैं. दूसरा केस देखिए, अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ये वाले जो केसेस हैं ये सब्ट्रैक्शन के केसेस हैं. ठीक है, अब अगर मेरे को सब्ट्रैक्शन करना है तो मुझे क्या करना होगा, अगर दोनों के जो साइन बिट्स हैं, जो अगर दोनों के बिट्स दोनों के साइन बिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, इन दोनों का डिफरेंट है, इन दोनों का भी डिफरेंट है, तो मुझे एडिशन करना है. ठीक है, तो मुझे एडिशन करना है. ओके, अब इस चीज़ को देखिए कि अगर हमने क्या किया, अभी जो एल्गोरिथम हम देख रहे थे उस एल्गोरिथम में अगर आपकी दोनों एडिशन के लिए जो आपकी जो साइन बिट होती हैं वो दोनों सेम थी. राइट, अब देखेंगे आप यहाँ पे अगर आपकी दोनों साइन बिट सेम है तो आपका सिंपल एडिशन परफॉर्म हुआ. अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और इन दोनों के साइन बिट सेम नहीं है, मतलब अगर दोनों के साइन बिट सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो तब भी हमें एडिशन करना पड़ेगा. लेकिन अगर हमारे एडिशन कर रहे हैं हम, अगर हमारे दोनों के प्लस A और प्लस B है, प्लस A एंड हम एडिशन कर रहे हैं और दूसरे की जो साइन बिट है वो अलग है, ये वाला जो केस है. ओके, माइनस A प्लस B, अगर दोनों की साइन बिट अलग है तब क्या होगा, तब हमारा ये वाला केस परफॉर्म होगा. अब इस वाले केस में देखिए, जब AS इज नॉट इक्वल टू BS, मतलब मेरी जो MSB है दोनों नंबर्स की सेम नहीं है, तब
ई ए इज इक्वल टू ई ए टेंस टू ए प्लस बी बार प्लस 1, मतलब सब्ट्रैक्शन करो, तब आप सब्ट्रैक्शन करो। और सब्ट्रैक्शन में क्योंकि एड ओवरफ्लो फ्लैग की तो ज़रूरत ही नहीं है इसमें, तो ए वी एफ को आप जीरो कर दो, क्योंकि एडिशन तो हो ही नहीं रहा, तो ए वी एफ आपका जीरो होना चाहिए। अब जीरो होने के बाद आप चेक करेंगे कि कैरी में क्या आया। अगर कैरी में आपका 1 आता है तो इसका मतलब आपका जो ए है वो बी से बड़ा है, ठीक है। अगर आपके कैरी का 1 जो है वो बड़ा आता है, कैरी में 1 आता है, तो इसका मतलब आपका जो ए है वो बी से बड़ा होगा। और जब ए से बी बड़ा होगा तब वो चेक करेगा कि ए में क्या है, ठीक है। ए अगर आपका जीरो है, ए अगर आपका जीरो है तो इसका मतलब आप साइन बिट को जीरो करो, ठीक है। क्योंकि अब देखिए हुआ क्या है, ए में आपका रिजल्ट स्टोर है, ई ए में आपका क्या स्टोर है, ई ए में आपका रिजल्ट स्टोर है। रिजल्ट क्या है, ए प्लस बी बार प्लस 1। ये करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद आपका जो रिजल्ट आया वो ई और ए में स्टोर हुआ है, ठीक है। तो हम डिस्कस, अब हम आगे काम भी ई और ए पे ही करेंगे, ठीक है। तो ए वी एफ का तो काम नहीं है, तो हमने इसको जीरो कर दिया और काम खत्म कर दिया। आगे देखिए, अब ई में क्या है, ई में हमारे पास में 2 वैल्यू हो सकती हैं, या तो जीरो हो सकती है या 1 हो सकती है। अब मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर ई में 1 है तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। आप ये करके भी देख सकते हो अपने आप, ओके। जब ए आपका बी से बड़ा होगा तब क्या होगा, तब जीरो में, तब ये आप तो ए को चेक करेगा, ए अगर जीरो है तो ए एस के साइन बिट को भी जीरो कर देगा और आउटपुट रिजल्ट दे देगा। अगर आपका ए जीरो नहीं है तो क्या होगा, तो ये सीधा डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। नाउ अगर आपका ई जीरो है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ए है वो बी से छोटा है। अब क्योंकि ए बी से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो रिजल्ट है वो निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ए को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। ए को कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ए में ए प्लस 1 करेगा, मतलब उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही यही है कि जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो आपका निगेटिव है। और ए एस में साइन बिट को भी तो देखना पड़ेगा, साइन बिट को भी आपका निगेटिव कर देगा और जो रिजल्ट है वो ए और ए एस में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा एल्गोरिथम काम करता है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में, और हम कोशिश करेंगे कि उसमें आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल लेके भी हम आपको समझा सकें। ओके, सो थैंक्स फॉर दिस क्लास, थैंक यू।